اتنا محبت مصطفیٰ کرتے ہیں حسین سے. تسبیح لمبی ہو گئی لیکن بچپن کا زمانہ ہے. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے ایک جگہ پر زیادہ دیر تک رکتا نہیں, کبھی یہاں کھڑا رہے گا, کبھی وہاں بیٹھا رہے گا, کبھی ادھر جائے گا, کبھی ادھر جائے گا. ہمارے گھروں میں, آپ کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوتے ہوں گے, آپ نے دیکھا ہوگا بچہ کبھی ایک جگہ پر مستقل رکتا نہیں ہے. امام علی مقام بیٹھے رہے, اس کے بعد میں پھر اتر گئے, اور جب اتر گئے تو نبی نے سجدے سے سر کو اٹھایا, پھر دوسرا سجدہ کیا, پھر نماز مکمل کر دیا. نبی نے نماز کو دہرایا نہیں کہ حسین بیٹھ گئے تھے میں نے سجدہ لمبا کر دیا ہے, نماز ہماری نہیں ہوئی. پتا یہ چلا اگر حسین کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی, کیونکہ خواجہ ہندوستان خواجہ معین الدین فرماتے ہیں شاست حسین بادشاہ حسین, ارے دین ہست حسین, دین بنا ہست حسین. یعنی امام علی مقام شاہ ہے, امام علی مقام بادشاہ ہے, امام علی مقام دین ہے. امام علی مقام دین ہے, امام علی مقام دین کی بنیاد ہے. خواجہ فرماتے ہیں حسین دین ہے, حسین دین کی بنیاد ہے. سردار نگر در دست یزید سر دے دیا لیکن ہاتھ نہیں دیا. حقا کی بنا لا الہ الا حسین, حقیقت کو پوچھو اور حقیقت سمجھو تو لا الہ الا اللہ کی تفسیر حسین ہے. سبحان اللہ بولو, اور زور سے, اور زور سے, اور زور سے. امام علی مقام لا الہ الا اللہ کی تفسیر ہے. اس لیے اگر جب امام حسین دین ہے تو آپ دین کو اگر خیال کر لیں گے نماز میں تو آپ کا نماز نہیں ٹوٹے گا. مصطفیٰ نے نماز مکمل کر لیا. اچھا, امام علی مقام گئے اپنی ماں فاطمہ کے پاس, اور جب خاتون جنت کے پاس پہنچے تو عرض کرتے ہیں امی جان آج مسجد نبوی شریف میں بہت کمال کی بات ہو گئی. خاتون جنت نے ارشاد فرمایا بیٹا کیا ہوا؟ کہا امی جان نانا سجدے میں تھے اور میں نانا کے پشتے مبارک پر بیٹھ گیا, اور جب نانا کے پشتے مبارک پر بیٹھ گیا تو امی جان نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا, سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا. نانا مجھ سے کتنا محبت کرتے ہیں, اگر نانا سجدے سے اٹھ جاتے میں پشتے مبارک سے گر جاتا, مجھے چوٹ لگ جاتی. اس لیے نانا نے مجھے بچانے کے لیے سجدے کو لمبا کر دیا, تسبیح بڑھا دی, تسبیح بڑھا دی. خاتون جنت ارشاد فرماتی بیٹا حسین ایسا نہیں کرتے, نماز کا احترام کرو, ایسا نہیں کرتے بیٹا, تم نے بہت اچھا کام نہیں کیا ہے بیٹا, نانا نے تم کو کچھ کہا نہیں. حسین عرض کرتے امی جان نانا نے مجھے کچھ نہیں کہا. تو آپ فرماتی ہیں بیٹا کبھی بھی اب جب نانا نماز پڑھے تو آپ ان کے پشت پر مت بیٹھنا. تو امام حسین جانتے ہو کیا فرماتے ہیں, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. امام علی مقام فرماتے ہیں امی جان تمہیں پتا نہیں ہے؟ خاتون جنت عرض کرتے ہیں ارشاد فرماتے بیٹا کیا بات ہے؟ کہا امی جب میں پشتے نبوت پر بیٹھا, میں جب نبی کے پشتے مبارک یعنی پشت مبارک پر بیٹھا, مصطفیٰ نے سجدے کو لمبا کر دیا, اور جب سجدے کو لمبا کرنا ہے تو تسبیح زیادہ پڑھنا ہوگا. تو امی جان آپ جانتی ہو میرے نانا نے 72 تسبیح پڑھا ہے, بولو سبحان اللہ. میرے نانا نے 72 تسبیح پڑھا ہے. امی جان جب کل نانا کے دین پر خطرہ آئے گا تو میں 72 کو لے جاؤں گا اور قربان کر دوں گا, دین محمدی بچا لوں گا. یہاں مصطفیٰ نے بچایا ہے مجھے, بولو مسجد نبوی میں مصطفیٰ نے مجھے بچایا ہے. 72 تسبیح پڑھ کر کے کربلا کے میدان میں میں مصطفیٰ کے دین کو بچاؤں گا. 72 کو شہید کروا کے. کربلا میں 72 شہید کیوں ہوئے تھے, وہ یہ ہے, یہ واقعہ ہے. آپ نے بہت
आलिमों से, आपने बहुत आलिमों से सुना होगा कि 72 शहीद हो गए, लेकिन जो नुक्ते की बात है वो कोई नहीं बताया कि 72 शहीद क्यों हुए। ये नुक्ता है और इसी वजह से 72 शहीद हुए थे, क्योंकि मुस्तफा ने हुसैन को बचाया। 72 तस्बीह पढ़ करके हुसैन ने ऐलान कर दिया था, जब करबला के मैदान में दीन खतरे में आएगा तो हुसैन 72 को ले जाएगा और 72 को रब के नाम पर कसमा देगा, मोहम्मदी बचा लेगा। इसलिए 72 शहीद हुए करबला के मैदान में। और क्या बताऊं तुम्हें प्यारे हुसैन के बारे में। इमाम अली मुकाम एक मर्तबा मस्जिद नबवी शरीफ की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते इमाम एक मर्तबा क्या नाम है खजूर के बागीचे में पहुंच गए। वहां पर क्या देखा कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु का बेटा अब्दुल्ला बैठा हुआ था। और जब अब्दुल्ला बैठे थे इमाम अली मुकाम पहुंचे और बचपन का जमाना है। इमाम फरमाते हैं, ऐ उमर के उमर के बेटे, ऐ अब्दुल्ला यहाँ पे क्या करते हो? हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, हुसैन में बैठा हूँ। मेरे आका हुसैन आज इरशाद फरमाते हैं, ऐ अब्दुल्ला के बेटे क्या करते हो? कहा मैं उमर के बेटे क्या करते हो? कहा मैं यहाँ पर बैठा हूँ। बातें थोड़ी चलती गई, बातें थोड़ी बढ़ती गई, आपस में तकरार होता गया और तकरार बढ़ते 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 जब थोड़ा तूल पकड़ लिया तो इमाम हुसैन को जलाला गया। सुभान अल्लाह, इमाम हुसैन को जलाला गया। इमाम फरमाते हैं, अरे मेरे नाना के नौकर के बेटे, मेरे नाना के गुलाम के बेटे, तो क्या बात करता है? तेरा बाप मेरे नाना का गुलाम है। तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम है। हजरत अब्दुल्ला को थोड़ी शर्म महसूस हो गई। हजरत अब्दुल्ला को शर्म महसूस हुई और जब शर्म महसूस वहां से निकले अपने घर आए और आने के बाद में अपने वालिद गिरामी हजरत उमर फारूक आजम से अर्ज करते, अब्बा हुजूर मैं खजूर के बाग में घूम रहा था, नवासे रसूल आ गए और आने के बाद में हमारी गुफ्तगू बढ़ गई, हमारी बात बढ़ी, हमारी तकरार बढ़ी। इमाम अली मुकाम ने फरमाया, तू क्या बात करता है? तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम है। अब्बा आप असरे मुबश्शरा के सहाबी हैं, आप नवासे रसूल इमाम अली मुकाम ने कहा है कि आप मेरे नाना के गुलाम हैं। अब्बा मुझे बहुत शर्म महसूस हुई। हजरत उमर फारूक आजम बैठे थे, उठ करके खड़े हो गए। बोलो सुभान अल्लाह, खड़े हो गए। बेटा क्या बात करते हो? क्या कहा हुसैन ने? अब्बा हुसैन ने कहा कि तुम्हारे वालिद तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर फरमाते हैं, बेटा क्या कहा हुसैन ने? कहा अब्बा हुसैन ने कहा है कि मेरा तुम्हारा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम है। हजरत उमर ने फिर पूछा, बेटा हुसैन ने क्या कहा है? कहा हुसैन ने कहा है कि तेरा बाप उमर मेरे नाना का गुलाम है। बेटा जो तुम मुझसे कहते हो यही बात हुसैन के सामने कह दोगे? तो अब्दुल्ला ने कहा कि जब हुसैन ने कहा है तो मैं हुसैन के सामने कह सकता हूँ। कहा चलो हुसैन की बात करें। चलो हुसैन की बारगाह में अब हजरत फारूक आजम चले, आपके बेटे अब्दुल्ला चले, हजरत इमाम अली मुकाम वही खजूर के बाग में बैठे हैं। और जब बड़े फिर उसके बाद जब पहुंचने के बाद में बातें होती रही। हजरत उमर फारूक आजम ने अर्ज किया, ऐ नवाज़े रसूल मेरा बेटा जो कह रहा है ये सच है? तुमने कहा है? इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, मैं अली का नाम लूं के सुभान अल्लाह, खुदा का शेर हूं, कभी झूठ नहीं बोलूंगा। अरे लोगों ने यार तुम्हें कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोलो। उमर की मोहब्बत देखो और उमर का ईमान देखो। हजरत उमर ने कहा, अरे नवासे रसूल मेरा बेटा कहता है कि आपने मुझे कहा है कि मैं आपके नाना का गुलाम हूँ, क्या ये सच है? इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, मैं अली के लाल का, मैं अली शेर खुदा का बेटा हूँ, मैं शेर खुदा का शेर हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने कहा है। एक मरतबा और कह दीजिए, बोलो सुभान अल्लाह, एक मरतबा और कह दीजिए। आप फरमाते हैं एक मरतबा क्या? उमर जो कहेगा मैं 1000 मरतबा कहूंगा, जो आप सच है वो सच है। इमाम हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ऐ नवाज़े रसूल एक बार कह लो। हजरत इमाम अली मुकाम फरमाते हैं, उमर मेरे नाना के गुलाम हो, उमर मेरे नाना के गुलाम हो, उमर मेरे नाना के गुलाम हो। इमाम हजरत उमर फारूक
तुम मुझे लिख के दे सकते हो? बोलो बोलो, क्या तुम मुझे लिख के दे सकते हो? फरमाते मैं लिख दूंगा, कल लिख दो। तो चमड़े का कोई टुकड़ा पड़ा था, इमाम हुसैन ने उठाया और उठाने के बाद लिख दिया, उमर मेरे नाना सरदार मदीना का गुलाम है। सुभान अल्लाह। उमर मेरे नाना का गुलाम है। हजरत इमाम अली मकाम ने जब लिखा उस टुकड़े पर और उमर को दे दिया, उमर ने लिया, उसे चूमा, आंखों से लगाया और सीने के करीब रख लिया। मेरे सुभान अल्लाह, करीब रख लिया और फरमाते बेटा अब घर चलो, जिंदगी का सितारा चमक गया, तकदीर बन गई, तकदीर बन गई। जब घर पहुंचे अब्दुल्ला गुस्से में, अरे अब्बा हुजूर आप तो यहाँ से बहुत जोश में गए थे, मेरे को ऐसा लगा था कि आप नवासे रसूल को डांटेंगे, आप नवासे रसूल को कुछ कहेंगे, लेकिन आप तो लिखवा करके लाए हो कि उमर मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह का गुलाम है। आप तो लिखवा करके लाए हो, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट है। आप फरमाते हैं बेटा अब्दुल्ला, अभी तक मैं नबी का गुलाम था, लेकिन गुलाम था, कोई सबूत नहीं था। बोलो, कोई सनद नहीं थी, कोई सबूत नहीं था, मैं सिर्फ गुलाम था। कल मैदान महशर में अगर मुस्तफा कह देते उमर मेरा गुलाम नहीं है, तो मैं मैदान महशर में कहा जाता बेटा आज नवासे रसूल ने जो टुकड़े पर लिख कर दे दिया है, ये सनद हो गई है मुस्तफा का गुलाम, ये सनद हो गई है, मैं मुस्तफा का गुलाम हूँ। अब यहाँ पर भी गुलाम रहूंगा, कब्र में भी गुलाम रहूंगा, हश्र में भी गुलाम रहूंगा। इस लिखाई को कोई नहीं काट सकता है, क्योंकि नवासे रसूल ने लिख दिया है, हमारे पास सनद आ गई है, ये सनद हो गई है कि मैं नबी का गुलाम हूँ। अब हमारी जिंदगी संवर गई, हमारी इबादत कबूल हो गई, हमारी रियाजत कबूल हो गई, हमारी तिलावत कबूल हो गई, अरे हमारी पूरी जिंदगी कबूल हो गई। ये हुसैन है, ये हुसैन है, ये हुसैन की बचपन है, ये हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बचपन है। बहुत तेजी से मैं बढ़ूंगा आगे। हजरत इमाम अली मुकाम के बचपन के और बहुत से वाकयात हैं प्यारे। और वाकया में यूं भी है कि हजरत इमाम अली मुकाम ने आपने सुना होगा, हजरत इमाम अली मुकाम और हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन ने तख्ती लिखा और तख्ती लिख करके लाए नबी की बारगाह में, लाए हजरत खातून जन्नत की बारगाह में और अर्ज करते हमने हुजूर हमने तख्ती लिखा है। कहा क्या लिखा है? कहा तख्ती देख लो। हजरत इमाम हसन ने पेश कर दिया, हजरत इमाम हुसैन ने पेश कर दिया और उसके बाद अर्ज करते हैं ऐ अम्मी जान ये बताओ किसकी लिखाई अच्छी है? हजरत खातून जन्नत हसन की तख्ती को देखती है, हजरत खातून जन्नत हुसैन की तख्ती को देखती है, दिल में एहसास होता है अगर तर्जु हसन की लिखाई ठीक है तो हुसैन को तकलीफ हो जाएगा,